So there is a finite ladder. It's not infinite ladder. There is a finite ladder, and it is constructed by connecting several sections of 2 microfarad and 4 microfarad capacitors. It is terminated by a capacitor of capacitance C. What should be the chosen C such that the equivalent capacitance of the ladder between the points A and B becomes independent of the number of sections in between. इसमें जो repeating element है except for the C वो क्या है? ये है, दिख रहा है? ये है, ऐसे यहाँ पे repeating elements हो गए. ठीक है, फाइनली हमने इसको टर्मिनेट कर दिया सी से. ठीक है ना. नाउ what it implies is that ये जो repeating units है, even if they are 4 or as shown in the diagram, or if let's say they are 100 or maybe 1000, you will get the same value of the capacitance, effective capacitance across A and B. तो इसको आप लॉजिकली भी कर सकते हैं. ठीक है, कैसे? देखिए ये जो C और ये 4 है, इसके पैरेलल में एक और कैपेसिटर होगा यहाँ पे, है ना, 2 माइक्रोफैरेड का. यस. तो ये दोनों 4 and 2, 4 and C, they are in series across these 2 points, and then this combination is in parallel. और अगर इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस C आ जाता है फिर से, ठीक है ना, इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस अगर C आ जाता है तो इसके प्रीसीडिंग जो यहाँ पे 4 and 2 था वो फिर से इसके साथ में कंबाइन होने के बाद में फिर से C देगा. क्योंकि अगर तो ध्यान से देखो, ये जो कॉम्बिनेशन है 4 2 C वाला, if it gives you an effective capacitance of C, then when you replace it, ठीक है, ध्यान से सुनना, when you replace it, आपने उस पूरे कॉम्बिनेशन को रिप्लेस करके उसके इफेक्टिव कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर दिया. उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना है? C है फिर से लेटर से. तो इसका प्रीसीडिंग जो रिपीटिंग यूनिट होगा यहाँ पे वो इसके साथ कंबाइन करके फिर से C देगा. आ रही बात समझ में? So what does it mean is that you have to apply this logic of that the equivalent capacitance of this should again be C. तो अब बहुत easy question है. 4 and C, they are in series first. So 4C upon 4 plus C, and this 2 microfarad is in parallel with it. This should again give you C. Now you can solve the equation and find the value of C. So let's say this is a plate. It has two faces. Okay. Sigma 1, sigma 2 could be there. They may or may not have the same charge density because of the presence of another plate in the vicinity. अगर ये isolated होता तब तो charge density equal आती. ठीक है, यहाँ पे sigma 3, यहाँ पर sigma 4. ठीक है, यहाँ पे charge Q1, यहाँ पे charge Q2. ठीक है, so this is a possibility. If the charge Q1, Q2 are not equal and opposite, then charge distribution on sigma 1, sigma 2 could be different. How do we find that? Okay, so think in terms of applying Gauss theorem. Maybe we have done this concept earlier as well. If I take a Gaussian surface, a cylinder, which is the flat faces of which are passing through the metallic plates, and the curved surfaces in between the two plates.
then think in terms of the relationship between sigma 2 and sigma 3. Now that is a hint. Now I give you 2 minutes to think over it. ये बहुत अच्छा केस है, इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं. कैसे? Let's say you have n such plates. Okay. अगर तुम्हारे पास ऐसी n प्लेट्स हैं, Q1, Q2, Q3 अप टू Qn चार्जेस हैं इसके, ठीक है, Q1, Q2, Q3 ऐसे Qn तक चार्जेस हैं. तो यहाँ पे कितना चार्ज होगा, यहाँ पे कितना चार्ज होगा, यहाँ पे कितना चार्ज होगा, यहाँ पे कितना चार्ज होगा. ठीक है, दिस रिलेशनशिप यू हैव टू थिंक in terms of the charge Q1, Q2 up to Qn, and also to analyze this you have to make use of this concept. ठीक है, I'll give you 2 minutes, think over it. देखिए इसको कैसे करेंगे मैं बताता हूँ. पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं एकदम सिंपलिस्टिक केस वेयर वी हैव ओनली 2 प्लेट्स. So let us say total charge is Q1 on the left plate and Q2 on the right plate. Okay. अब मैं एज्यूम करता हूँ कि इधर चार्ज Q0 है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेफ्ट प्लेट के आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज Q0 है. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q0 हो जाएगा. ये सुनो, ठीक है. अब देखो ध्यान से, ये जो गॉसियन सरफेस लिया है मैंने, इस गॉसियन सरफेस का एक तो कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, विच इज लाइक नॉर्मल टू दी प्लेट्स. ठीक है ना, और एक फ्लैट सरफेस एरिया ये वाला. तो अंदर तो फील्ड जीरो है, अंदर फील्ड जीरो है, तो इसलिए यहाँ पे जो फ्लक्स निकालोगे वो जीरो आएगा, यहाँ पे भी फ्लक्स जीरो आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही है. और जो अपने बाहर कर्व सरफेस लिया है उस कर्व सरफेस का एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर रनिंग पैरेलल, तो इधर भी फ्लक्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. ये बात समझ में आई. तो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द एंटायर गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स क्या हो गया, जीरो, which implies Q enclosed is also zero. आई बात समझ में कि नहीं. अब यहाँ पे चार्ज कितना enclosed है, चार्ज. Excuse me, sir. हाँ बेटे. Sir, Abhay is waiting in the waiting room. आप उसको प्लीज अंदर ले लेंगे. अच्छा अच्छा. तो यहाँ पे और यहाँ पे चार्ज आपका enclosed है, ठीक है ना, एक लेफ्ट प्लेट के राइट में और राइट प्लेट के लेफ्ट में. ये टोटल चार्ज एनक्लोज आपका क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि टोटल फ्लक्स जीरो है. इसका मतलब क्या है, और दोनों का एरिया भी सेम है, यहाँ का जो एरिया होगा वो एरिया उसका भी होगा. तो इट गिव्स यू एन आइडिया दैट इस प्लेट पे और उस प्लेट पे चार्ज एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट होगा, ठीक है ना. तो यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव है. किसका नेगेटिव है, इसका नेगेटिव है, Q1 माइनस Q0 का नेगेटिव है. इज दैट क्लियर. So based on this
probably we had done this derivation earlier as well, this analysis earlier as well. तो यहाँ पे और यहाँ पे चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगा. इज दैट क्लियर? तो यहाँ का चार्ज अब कितना होगा? Q2 प्लस Q1 माइनस Q0, क्योंकि दोनों प्लेट्स का टोटल चार्ज ऐड होने के बाद में Q2 आना चाहिए. ठीक है ना? तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट. अब यहाँ पे चार्ज कितना होगा? ये चार्ज Q2 plus Q1 minus Q0. So this is how you can find out the charge distribution. But still one thing remains is that what is the electric field, what is the charge Q0. इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी होगी, इस रीजन में भी होगी और इस रीजन में भी होगी. ठीक है ना? यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, यहाँ पे माइनस सिग्मा, जैसे सिग्मा 1 है. ठीक है ना? तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बट यहाँ पे जो सिग्मा 1 डैश और यहाँ पे जो सिग्मा 2 है, इज दैट क्लियर? ये नॉन जीरो नहीं है, सॉरी नॉन जीरो है ये, है ना? तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी. ठीक है ना? इस चार्ज का और इस चार्ज का आउटसाइड स्पेस में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोस्टैटिकली शील्डेड बाय दिस मेटल प्लेट. बट ये चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ये चार्ज की भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. ठीक है ना? नाउ बेस्ड ऑन दैट यू कैन फाइंड आउट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q0. ठीक है ना? तो हम लोग वो भी अब ट्राई करते हैं कैलकुलेट करने की. तो by far so far we know that मैं एक्सट्रीम लेफ्ट रीजन की बात कर रहा हूँ. एक्सट्रीम लेफ्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E0 है. और वो E0 किस पे डिपेंड करेगी? Q0 बाय A एप्सिलॉन नॉट Q0 पे डिपेंड करेगी. Q0 बाय A इज द चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट. ठीक है ना? तो इसकी फॉर एनी कंडक्टिंग सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जैक्टली इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है ना? ये डेरिवेशन हमने कंडक्टर की प्रॉपर्टीज में किया था, इफ यू रिमेंबर, गॉस थ्योरम की हेल्प से. अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज Q0 बाय A एप्सिलॉन नॉट, and this field is basically due to the superposition of charge density of here. Let's say this is sigma, this is minus sigma, and this is sigma 1, let us say. Okay, so 1 2 3 4, there are 4 different charge configurations. All of them will have some effect at this point, and the resultant of that is this value. Okay, now अब यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग चारों चार्ज डेंसिटी का यहाँ पे नेट इफेक्ट देखेंगे. तो सिग्मा नॉट की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी? सिग्मा नॉट की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी लेफ्ट में, सिग्मा की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी लेफ्ट में, माइनस सिग्मा की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी राइट में, और सिग्मा 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी लेफ्ट में. इज दिस क्लियर? नो Stuti, we cannot do that. The method you are saying, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल एरर है that you will realize once we do this problem. तो अभी आपको इतना समझ में आ गया? सिग्मा नॉट, सिग्मा माइनस सिग्मा एंड सिग्मा 1, इन सब की चार्ज डेंसिटी की बेसिस पे यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. वो कितनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है, तो वी विल राइट दैट, एंड वी आर टेकिंग दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. ठीक है, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, इनफाइनाइट शीट का यही होता है, सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड प्लस सिग्मा 1 by 2 epsilon naught. So this is the net electric field and it should be equal to sigma naught by
epsilon. So this is from the property of the conductor, third property of the conductor that we derived using Gauss theorem. And this is based on the electric field due to infinite sheet. अब तुम ये देख सकते हो कि ये वाली जो प्लेट का पेयर है इसका नेट इफेक्ट 0 ही आने वाला है, ठीक है ना। तो बचा क्या तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये टर्म तो 0 हो गया तुम्हारा, और यहाँ पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो ये इसके साथ जाके यहाँ पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इससे कैंसिल हो गया। दैट मीन्स जो चार्ज डेंसिटी है आउटर मोस्ट रीजन में वो भी इक्वल होगी। अरे बात समझ में कि नहीं? सर हेलो, तो मेरे को डाउट है। हाँ बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही नहीं होगा? क्या कह रहे हो? तुम्हारी वॉइस सिग्मा और माइनस सिग्मा के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में नहीं रहेगा सर? सेम में मतलब? सर आपने सिग्मा का इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में दिया और माइनस सिग्मा का राइट में दिया, तो दोनों का एक ही डायरेक्शन में नहीं होगा सर? एक डायरेक्शन में कैसे होगा यार? एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगी। सर तो अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी सोच रहा था। तो इससे अब तुमको क्या पता चला कि जो ये वाला डेंसिटी है और ये वाली डेंसिटी है वो इक्वल होगी। एक्सट्रीम प्लेट्स में चार्ज डेंसिटी हमेशा इक्वल आती है, ठीक है। और वो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या है वो भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। कैसे देखो, अभी मैंने 2 प्लेट्स के लिए किया है, ये सेम चीज हम एक्सटेंड कर देंगे n प्लेट्स के लिए। तो तुम्हारा जो सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा नॉट है वो अब किसके बराबर हो गया? इट ऑल्सो गिव्स यू एन आइडिया दैट क्यू नॉट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q नॉट, इसके बराबर है। ये एरिया तो इक्वल है, ठीक है ना। फ्रॉम दिस यू विल गेट दैट Q नॉट इज the average of the charge on plates, and once you know Q naught you can find out all other charges inside outside everything you can find। तुमको अगर ये Q naught मिल गया तो उसके बाद में ये निकालना it's not that difficult। is it clear? Now that same thing can be argued upon and then proved that if इस पे चार्ज Q1 Q2 Q3 अप टू Qn है, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट पे जो चार्ज होगा आउटर मोस्ट पे उसकी वैल्यू होगी समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस Qi डिवाइडेड बाय 2। तो ये सेम लॉजिक हम एक्सटेंड करेंगे जो हमने यहाँ पे किया। इसको लिख लीजिए, फिर n वाला लिख लीजिएगा, देन वी विल डू दिस प्रॉब्लम।